Hello bachcho, let's read the given question. The question says a body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the kinetic energy of the body at the end of the trip? So in this question we need to understand the question by the concept of work energy principle. We can solve it very easily. So work energy theorem के हिसाब से we can write W net, that is net work done is change in kinetic energy, right? So यहाँ पे we need to understand के जो W net है it is work done due to all the forces, क्योंकि हमने यहाँ पे W net लिखा है. So work done by all the forces means work done by either conservative force or non conservative force. सबके वजह से जितना भी work done हुआ है will be leading to the change in kinetic energy. ठीक है. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, spring force, electrostatic force. There are many conservative forces which we have studied, and non-conservative force के लिए we deal with friction, right? So यहाँ पे also we need to understand work done को basically हम क्या लिखते हैं. Work done is force into the displacement in the direction of force, or this value can also be written as, this is the vector form, or we can say the dot product. So this can be written as Fs cos theta, where cos theta is the angle, theta is the angle between force and displacement. अब इसी थीटा के हिसाब से वी विल डिसाइड वेदर वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग अबाउट फ्रिक्शन. लेट सपोज वी हैव अ ब्लॉक जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट. सो वी नो के दिस ब्लॉक विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, या फिर स्मॉल एफ से हम दिखा रहे हैं इसे. सो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू इनटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. Normal reaction, if mg is the weight of the block in the downward direction, so surface will be exerting a normal reaction on the block in the upward direction. So as there is no vertical motion, so n को हम क्या लिख सकते हैं, mg. अब अलग अलग केसेस में नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग आता है. इन दिस केस व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी mg, राइट? सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दैट. Also student might get confused about the work done process for a conservative force, right? So अगर हम बात करें, let's say this is a block which is moving on this inclined slide, or we can say this is the wedge, we can say, and the height is h. So अगर हम लिखेंगे कि जो gravitational force इस block के ऊपर लग रही है, that is mgh. just we take the initial and final point. इन दोनों point के बीच की जो दूरी है वो क्या है, h है actually. इन दोनों point के बीच की जो height है वो h है. So we will just consider the height and not this path जिसके ऊपर ये block चल के आ रहा है. So that's what the meaning of work done by conservative force is. It is independent of the path and just depend upon the initial and the final point. So this was the initial point and this is the final point. So this is the basic concept that we need to be clear with. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. सो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने 0.3 kg के मार्क्स को ऊपर लेके गए और ऊपर का डिस्टेंस हमें 10 मीटर गिवन है. सो दिस डिस्टेंस इज बीन गिवन एज 10 मीटर एंड उसकी हाइट हमें गिवन है 5 मीटर, राइट? एंड दिस ब्लॉक इज टेकन अप टू दिस हाइट. ठीक है. अब एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन बैक. अब ये वापस से स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ. सो हम मान लेते हैं कि दिस इज द एंगल. ये जो एंगल है हम क्या ले लेते हैं, ऐसे थीटा. अगर हम थीटा को देखें, सो थीटा की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय यूजिंग द दिस ट्रायंगल वैल्यूज. सो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. सो थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, राइट? सो दिस इज द वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड. अब हम बात करते हैं कि एफवीडी बनाते हैं इस ब्लॉक का, कि इस पे फोर्स कौन सी लग रही होंगी. सो सबसे पहले वी कैन सी कि लेट्स से ब्लॉक को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ शो करते हैं ताकि वी कैन शो ऑल द फोर्सेस प्रॉपर्ली. सो लेट्स से दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड. ठीक है. सो वी कैन एज वी हैव डिस्कस्ड कि इसके ऊपर जो इसका फोर्स लग रही होगी, सबसे पहले तो इसका वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड अगर हम देखें तो mg कंपोनेंट को अलोंग दिस वर्ड इंक्लाइन हम रिजॉल्व कर सकते हैं. one of its component will be mg sin theta and perpendicular component क्या हो जाएगा, mg cos theta, right? and normal reaction इसको surface से मिलेगा in the upward direction n. so also we need to remember कि if this angle is theta, so ये एंगल हो जाएगा 90 minus theta and this angle will be theta. so इसीलिए mg cos theta यहाँ लिया, mg sin theta यहाँ पे.
ऑल्सो वी कैन सी कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि ये नीचे आ रहा है. सो इनिशियली जब इस ब्लॉक को हम ऊपर ले गए सो वहाँ पे उसे रेस्ट पे रखा गया. फिर उसके बाद हमने उसका क्योंकि उसको डायरेक्शन रिवर्स करनी थी, सो इन दैट पोजिशन वी कैन कंसिडर इनिशियल स्पीड टू बी एज 0. ठीक है ना. अब वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ एंड वी हैव बीन आस्क्ड के जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी. लेट्स सपोज कि उसकी स्पीड v होगी. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि नीचे जब वो पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सो यूजिंग दिस वी कैन से बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज w net is equals to change in kinetic energy. हम क्या लिख सकते हैं. सो यहाँ पे अब वी नीड टू बी केयरफुल वर्क डन हमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले बॉडी को हम नीचे से ऊपर ले गए, फिर ऊपर से फिर ये बॉडी नीचे आ रही है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आने वाला है, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. एंड दैट टुगेदर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट भी नीचे ही है और फाइनल भी नीचे ही है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 0. अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं. सो जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी सो जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी बैलेंसिंग द फ्रिक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दिस mg sin थीटा. राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्सेस नीचे की, फोर्स भी ऊपर की तरफ ही है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं जब ये ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे होंगे. ठीक है. सो दैट फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट इन द मिनिमम केस वी कैन कंसिडर कि वो एटलीस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम जी साइन थीटा के. राइट. ये एक्सटर्नल फोर्स होगी इनटू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना था 10. राइट. और वी कैन से अब ये ब्लॉक ऊपर पहुंच चुका है. अब जब ब्लॉक नीचे आएगा तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट टू इन द अपोजिट डायरेक्शन. ऑलराइट. और यहाँ पे वी नीड टू बी अंडरस्टैंड जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं तो जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तब भी फ्रिक्शन लग रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो वी विल टेक ट्वाइस द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू कंसिडर इट ट्वाइस. राइट. एक तो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा नीचे से ऊपर, एंड अगेन म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर से नीचे. ठीक है. सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी cos theta. So that we need to be careful. और ये हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा. इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. ठीक है. एंड ऑल्सो एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, 2 म्यू एम जी कॉस थीटा तो ये फोर्स हुई सिर्फ. डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों तरफ, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है. सो वी कैन टू बी प्रिसाइजली राइट 2 म्यू 20 म्यू एम जी कॉस थीटा. राइट. ऊपर के लिए 10 डिस्प्लेसमेंट है, 10 डिस्टेंस कवर किया है, नीचे भी 10 किया है. सो टोटल विल बी 20 एंड म्यू एम जी कॉस थीटा विल बी द फोर्स. सो दिस इज द केस वी कैन राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस 20 म्यू एम जी कॉस थीटा. तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज म्यू माइनस ऑफ 10 म्यू एम जी cos theta, and that will be equals to kinetic energy final. Right. यहाँ पे we need to be careful, this is 10 mg sin theta. Right. So ये वैल्यू आएगी हमारे पास 14.7 minus of this can be written as 10 into mu. Mu is 1.5 into 0.3 into 9.8 into cos 30 is root 3 by 2, that is 0.866. ठीक है. So this will be the value of kinetic energy final we are getting, and this on solving we get 14.7 minus 3.82. Therefore we can say final kinetic energy comes out to be 10.88 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.